Hello, my dear children. You're most welcome in class 12 accountancy. I, R.R. Tripathi from LPM Public School, just going to explain yesterday issue of debenture, consideration other than cash. I mean to say the purchase consideration. First, we have to know the exact meaning of purchase consideration. Sometimes a company purchase some assets from other companies, and then what happened, my dear? Instead of paying cash, the company issues shares or issues debentures in the place of cash. When the payment is made by the company by issuing shares, by issuing debentures, that is called consideration other than cash. In Hindi you can think, जब कभी कंपनी किसी भी कंपनी का या कोई भी संपत्ति खरीदती है तो कैश के स्थान पर यदि कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करके या ऋण पत्रों का निर्गमन करके बेटा पेमेंट करती है तो उसे हम कंसिडरेशन अदर देन कैश कहते हैं. You have sent me the problem of question number 18, Star Textile Limited. Sir, this one is the question number 18, practical questions given. A company named Star Limited purchases some assets from the company, name of the company, Modern Textile Limited. Purchased assets of Modern Textile Limited. Now see and listen it carefully. First try to understand the question. My dear, the problem just you are facing only when you are not able to understand the fact, the information given in the question. Land and building of rupees 25 lakh at rupees 40 lakhs. Means whatever the assets purchased by the Star Textile Limited, land and building, that is the cost of rupees 25 lakhs in the book of Modern Limited. But the Star Textile Limited purchased it in 40 lakhs rupees. मतलब 25 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड ने 40 लाख रुपए में खरीदा बेटा. उसी तरह से आपका दिया है प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज 10 लाख. जो प्लांट और मशीनरी है मॉडल लिमिटेड का वो 10 लाख का है और उसे 7,50,000 रुपए में खरीदा. एंड फर्नीचर ऑफ रुपीज 3 लाख. फर्नीचर का जो बुक वैल्यू है मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड का वो 3 लाख का है और कंपनी उसे 1 लाख रुपए में खरीद रही है. फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 45 लाख. और परचेज कंसिडरेशन क्या दे रही है? 45 लाख रुपीज की. स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड पेड रुपीज 3 lakhs in cash and remaining by issue of 9% debenture of rupees 500 each at a premium of 5%. Record necessary entries in the books of Star Textile Limited. अब जरा सा देखें कैसे हम इसे करते हैं. सबसे पहले what comes in debit, ये एंट्री होती है what comes in debit. फर्स्ट हमारे पास क्या क्या आ रहा है.
आप क्वेश्चन में देखेंगे हमारे पास आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग। नाउ द एंट्री विल बी मेड लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ये कितने में आ रहा है देखेंगे बेटा 40 lakhs। जस्ट यू कैन राइट दिस वे 40 lakhs। 40 lakhs। नेक्स्ट आइटम परचेज्ड बाय द कंपनी। नेक्स्ट आइटम दैट इज द प्लांट एंड मशीनरी। फर्स्ट एंट्री प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड machinery account debit, the amount that is given means the book value 10 lakhs and it is being purchased by the Star Textile Limited in 7 lakh 50,000. Now the amount paid by the company will be paid by the company 7 lakh 50,000. And next, furniture. Furniture of rupees 3 lakhs for 1 lakh. Now, furniture. Furniture account debit 1 lakhs. And for purchase consideration of rupees 45 lakhs means to modern textile limited. इनको कुल का पैसा कितना देना है? 45 लाख रुपए टू मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड. Just the amount will be paid, that will be credited, will be 45 lakhs. Now you can see over 45 lakhs. Now total of this just 40 and 48 lakhs 50,000. That will be total of debit column. Assets will be purchased. Then the rest of the items, whatever the things, that will be the capital reserve. To capital reserve, the difference of net worth, total assets minus the liability to capital reserve. यहां पर आपको ये ध्यान देना होगा बेटा कि जो ये हो जाएगा 3,50,000. आप यहां पर देखेंगे इस फर्स्ट एंट्री में बेटा एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है आपका कि यहां पर जो हमने एसेट्स लिया वो डेबिट हुआ 40 लाख, 7,50,000, 1 लाख. मतलब कुल हमने एसेट्स जो खरीदा है कंपनी का, पूरा एसेट्स खरीदा है वो 48,50,000 का. अब हम केवल उनको पेमेंट कितने का देंगे? 45 लाख रुपए का. तो ये 3,50,000 क्या है? ये 3,50,000 जो होता है बेटा वही बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि डबल अकाउंट सिस्टम के तहत, डबल एंट्री सिस्टम के तहत क्रेडिट और डेबिट दोनों इक्वल होते हैं. तो उसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व. ध्यान रहे, यदि टोटल ऑफ डेबिट एसेट्स का टोटल जो अमाउंट पे किया जा रहा है किसको? कंपनी को, ये कंसिडरेशन अदर देन कैश में, तो उसका डिफरेंस जो होता है
वो हमारा कैपिटल रिजर्व होता है। अब दोनों पहलू हो सकते हैं। मान लीजिए जो यहां पेमेंट किया जा रहा है और एसेट्स कम हो सकता है, तो डिफरेंस जो होता है वो गुडविल का होता है, वो गुडविल को डेबिट करते हैं। इस तरह से ये ध्यान में रहना चाहिए, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। अब आगे ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ये पहली एंट्री हो गई, आगे ये कहा जा रहा है बेटा कि स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड पेड ₹3 लाख इन कैश, 3 लाख रुपए कैश दे दिया जा रहा है किसको? मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड। तो आप यहां लिखेंगे, फिर दूसरी एंट्री जो होगी मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड डेबिट। अब इसी पर हम करते चले जा रहे हैं, टू बैंक, ये हो गया आपका मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड को हमको कितना देना है? 45 लाख रुपीज। हम यहीं पर लिख दिए। चलो भाई, एक ही में हम कर दे रहे हैं। टू बैंक, ये आपको 3 लाख तुरंत कैश दिया है, टू बैंक। अब टू डिवेंचर, टू कितना परसेंट डिवेंचर है? आपको जो डिवेंचर रेस्ट ऑफ द मनी बाय इशू ऑफ 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹500 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 500 का एक डिवेंचर है 5% प्रीमियम पर, तो 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, और प्रीमियम पर है 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अमाउंट भरने के लिए हम आपको 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट, अब यहां पर अमाउंट क्या भरा जाएगा ये हम आपको बता रहे हैं। देखें एंट्री के साथ हम यहां पर एक छोटा सा वर्किंग नोट करते हैं। आप देखेंगे कि 45 लाख रुपए हमको मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड को देना है, जिसमें से 3 लाख हमने नगद दे दिया, बचा कितना? 42 लाख। 42 लाख रुपए हम इनको डिवेंचर इशू करके दे रहे हैं। तो कितना डिवेंचर इशू करेंगे? आप देखेंगे एक डिवेंचर की कीमत 500 रुपीज है और 5% प्रीमियम पर है, तो 500 इंटू 5/100, 25 रुपए, मतलब 525। ये डिवाइड कर देंगे आपको 525 रुपीज। 525 रुपए, 25 रुपए प्रीमियम और 525 रुपीज से आप इसे डिवाइड करेंगे, छोटा करते चले जाएंगे आप। 5 से इसको डिवाइड करें, 5 1 जा 5, 0, 5 5 जा 25। इसको भी 5 से डिवाइड कर दें, 5 8 जा 40, 220, 5 5 जा 5 4 जा 20, 0 0 0 0। अब आ गया 8,40,000 अपॉन 105। इसे भी 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ये चलिए 5 1 जा 5 3 4, 5 6 जा 30, 5 1 5 3 4, 5 30 4,
8,000,000 means 1,68,000 डिवाइडेड बाई 21। अब यहां पर 1 से 8 टाइम आप कर दें, 8 1 जाए 8 2 जा 16, 8,000 डिवेंचर्स। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इज इक्वल टू 8,000, 9% डिवेंचर इशूड बाय द कंपनी। अब क्या करेंगे, यहां पर डालेंगे 8,000 into 500 means 50 8,000 into 500। आप उसके बाद 40 lakhs means 40 lakhs डिवेंचर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 800 into 25 is equal to 2 lakhs। ये आपकी एंट्री होगी। Being payment made by the issue of debenture as premium of 5%। 500 500 डिवेंचर है, 500 का 5%, 500 रुपए का मूल्य है एक डिवेंचर का, और हमको 42 लाख का 42 लाख रुपए का डिवेंचर देना है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर हमने कैलकुलेट किया, 525 रुपए के हिसाब से डिवाइड किया तो 8,000 है। 8,000 डिवेंचर्स है, तो मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड डेबिट 45 लाख, 3 लाख हमने नगद दिया, 40 लाख का डिवेंचर इशू किया और 2 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में गया। मतलब 8,000 इनसे इनको डिवेंचर इशू किया गया है। इस तरह से इशू होता है डिवेंचर बेटा। अगर जो कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार पुनः मैं आपको इसे हिंदी में समझा दूं। देखिए, इशू ऑफ डिवेंचर होता है बेटा, इस क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से ये देख करके मैं बता दे रहा हूं आपको कि जब कभी कंपनी किसी भी कंपनी की संपत्ति को परचेज करती है, तो जब परचेज करती है तो कैश के स्थान पर यदि उसके बदले में वो क्या करती है, पेमेंट करती है, या तो डिवेंचर पे करे या शेयर दे, तो उसे हम कंसिडरेशन अदर देन कैश करते हैं। शेयर यदि देती तो 2 शेयर कैपिटल हो जाता, यहाँ पर 2 डिवेंचर्स है, 9% डिवेंचर। अब ये कंपनी जो स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड है, ये मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड का लैंड एंड बिल्डिंग 40 लाख में खरीद रही है, प्लांट एंड मशीनरी 7,50,000 रुपए में खरीद रही है, और फर्नीचर जो है 1 लाख रुपए में खरीद रही है। तो कुल मिलाकर के 48,50,000 की संपत्ति खरीद रही है, और उसके बदले वो क्या कर रही है, डिवेंचर इशू कर रही है कैश के जगह पर। अब यहां पर जब पहली एंट्री बनाएंगे तो 40 लाख का हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग आया, प्लांट एंड मशीनरी 7,50,000 का, और 45 लाख रुपए ही दिया जा रहा है, 45 लाख का डिवेंचर। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमारा हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। वो कैपिटल रिजर्व हो गया बेटा 3,50,000 का, मतलब उसकी लायबिलिटी भी ले रहे हैं। अब उसे पेमेंट देना है हमें 45 लाख रुपए, तो ये कहा जा रहा है कि कंपनी जो है 3 लाख नगद दे रही है, तो मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड डेबिट हम नगद उसे करेंगे। टू बैंक 3 लाख रुपए, 45 लाख हमें देना है, 3 लाख रुपए, और 8,000 डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, और जो बच रहा है 45 लाख में से 3 लाख नगद देने के बाद 42 लाख का डिवेंचर 500 रुपए वाला 5% प्रीमियम पर हम इशू कर दे रहे हैं। तो 500 का 5% 25 रुपए होगा, मतलब एक डिवेंचर की कीमत आपका 500
25 रुपए। 525 से 42 लाख को डिवाइड करेंगे तो हमारा 8000 आएगा। नंबर ऑफ डिवेंचर्स 8000 हो गया। 8000 इंटू 500, क्योंकि फेस वैल्यू ही जाता है, वो 40 लाख का हो गया। उसके बाद कुल सिक्योरिटी प्रीमियम 800 गुणे 25 2। इस तरह से बेटा क्वेश्चन का सलूशन बनता है। ये है आप लोगों के लिए, फिर अगली बार और बता देंगे हम। थैंक यू वेरी मच।